How are you all? कैसे हो तुम लोग? पढ़े भी हो? Have you studied anything? कुछ पढ़े भी हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो विवेक। पढ़े हो? बताओ। हेलो विवेक। हेलो विवेक कुमार। बने विवेक कुमार से Atmospheric temperature and pressure. शांति स्टार्ट करो। शांति ज्योति स्टार्ट कीजिए। Why you people are waiting? शांति। अपर्णा मैडम आपकी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning to all of you. Who is repeating my voice? Who is repeating? Just tell me. Who is making fun during the class time? Don't try to repeat it. हम रखे थे कि तुम ही रख ली थी झूठी। हम झूठ नहीं बोल। Good morning, ma'am. Good morning to you all. And who was repeating my voice? Raise your hand. Mute your mic. And all of you open your video. I want to see your faces. Don't stop video. What is this? क्लास शुरू हुआ नहीं कि आप लोग चिल्लाना शुरू कर दिए? ये नहीं सुनने की बीमारी है कि आप लोग का काम भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। दे दिया जाता है, डेली वर्क भी दिया जा रहा है, पढ़ने को भी दिया जा रहा है, लेकिन 90% बच्चा बोलता है मैम ये चीज हमको फिर से दे दीजिए, ये चीज हमको फिर से दे दीजिए। सुनना ही नहीं है, क्लास शुरू हो गया है, सुनना है ही नहीं। जब मर्जी आया, जो मर्जी आया बोल दिए। बस बोल देना है तो हम बोले जा रहे, नथिंग एल्स। Just listen and don't make unnecessarily voice. क्लास करते हैं आप लोग और उसके बाद हल्ला भी करते हैं, तो दिस इज बैड, नॉट गुड। Yesterday we are continuing lesson 4 and that air around us, and the main point of it was, and yesterday also I have given the in your WhatsApp group about the syllabus or lesson of the upcoming test that is on 26/7, and the question answer and PDF of lesson 13 also. And so please don't chat in your WhatsApp group. See what the instead of chatting, just see what the teacher is posting and what the teacher is saying to you, because chatting will spoil you. So please. And next is that we have completed lesson 3 already. You have completed, you have got the question answer and the PDF of lesson 3 also, and this is the your test portion of upcoming date 26/7/20.
And now I was studying, I was teaching air around us. The chapter is lesson 4, geography, air around us. And the important point of this are, the atmosphere is divided into 4 different layers. There are troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. The troposphere, it is the densest layer of the atmosphere. This is the portion we live in, and is therefore most familiar to us. And now, in the troposphere, on an average, the temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius with every 165 meter ascent. This is called the normal lapse rate. This is why temperature is very low in high mountain. After troposphere, there is a stratosphere. और इसमें जो लेयर आप लोग एयर का समझ रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जा, इक्वेटर से आप समझिए कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, इसलिए ही एयर का प्रेशर जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है और इस टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है जब हम लोग हाई माउंटेन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर. This ozone layer is very important as it acts as a filter and absorbs harmful ultraviolet rays, sun rays, from reaching the Earth's surface. After that, mesosphere, and after that thermosphere. Thermosphere सबसे ऊपर का लेयर होता है, मेसोस्फेयर के ऊपर से भी, मेसोस्फेयर में मेट्रोस बर्न अप इन दिस लेयर, मतलब इस लेयर में आकर मेट्रोस जो हैं जब आते हैं तो वो जल जाते हैं, यहाँ पे मतलब इससे आगे वो नहीं बढ़ पाते. Thermosphere, above the mesosphere is thermosphere where the air is very thin. In the lower layer of thermosphere, ionosphere, ion particles are present in concentration. These ion particles are electrically charged and play an important role in our wireless communication. And after it, air and its composition. The air is composed with the different types of gases, and they are nitrogen, oxygen, carbon dioxide. और फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं 90 किलोमीटर अबव, तो वहां पे क्या होता है, व्हाट विल हैपन, जब और अदर गैसेस भी उसमें मिलना शुरू कर देते हैं. तो एटलीस्ट एट 90 किलोमीटर तक कंपोजिशन जो है बराबर रहता है. किसका किसका, नाइट्रोजन का अर्थ सरफेस 90 किलोमीटर कहाँ, अर्थ सरफेस, अर्थ से ऊपर की ओर. और उसके बाद कहता है कौन कौन सा कंपोजिशन बराबर रहता है, वो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. शिवाशीष, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैम, माय इंटरनेट इज पुअर सो आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट माय वीडियो. ओके शिवाशीष, व्हेनेवर द इंटरनेट अगर क्लास के बीच में आ जाता है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा. Now, children, one thing that yesterday some students have asked me, what is hygroscopic nucleus? Hygroscopic nucleus is a microscopic particle in the free air onto which water vapor may condense to form droplet. मतलब जो बड़ा होता है, जो जहां जाके कंडेंस करता है वाटर वेपर, उसी को कह रहा है कि that is the hydroscopic nucleus है. In fact, it क्या करता है, as center for water condensation at relative humidity below, at and above. जहां भी ह्यूमिडिटी ये होता है, और ह्यूमिडिटी कहाँ से होता है, अगर उसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सॉल्ट, डस्ट और स्मोक उस एयर में मिले रहते हैं तभी होता है. अब देखिए फिर से, hygroscopic nucleus is a microscopic particle in the free air onto which water vapor may condense to form droplet. In fact, it acts as center for water condensation at relative humidity below, at and above. Or this is the definition, the meaning of hygroscopic nucleus, around which water vapor get condensed to form क्लाउड. ये आपके बुक में भी इसी तरह दिया है. डस्ट पार्टिकल एक्ट एज ए हाइड्रोस्कोप, मतलब जो भी डस्ट, साल्ट, पॉलन जो भी रहता है, तो वो एयर को
उसी के आसपास जो है कंडेंसेशन होता है, ये कह रहा है। द प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, से उसको नापा जाता है। द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज नोन एज मिलीबार। द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1013 मिलीबार। एंड नाउ दिस इज, कल तक का जो हम लोग पढ़े थे ये रिवीजन था। एक बार फिर से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, most of the life forms on the earth exist in the lower part of the atmosphere, although we may never feel the pressure or weight of air over us, but it constantly presses us. This pressure or weight of air is measured by means of an instrument called barometer. The unit of air pressure is known as millibar. The normal air pressure at sea level is 1013 millibar. 13 millibar. As we go higher on the mountains or travel in air, we notice our ear pop. This is due to the drop in air temperature and atmospheric pressure. Pop का मतलब आवाज आनी शुरू हो जाती है, तभी एरोप्लेन से जब हम लोग चलते हैं तो कान को रुई देने लगा करके कहता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे शून्य होना शुरू होता है, due to the drop in air temperature and atmospheric pressure. This variation in temperature, atmospheric temperature and atmospheric pressure divide into atmosphere in different layer, और यही जो एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर में बदल देता है। Wind. In an area where temperature rises high, the air gets heated and rises upward. अब कहता है कि जिस एरिया में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एयर क्या होता है, गर्म हो जाती है, हवा वहां की गर्म हो जाती है। ऐसे आप लोग देखते हैं बहुत गर्मी होती है तो हवा भी गर्म मिलती है, उसी को कह रहा है। उसके बाद कहता है दिस कॉज फॉल इन द एयर प्रेशर एंड द एरिया। अब क्या कहता है, उस समय एयर प्रेशर जो है कम हो जाता है, फॉल इन एयर प्रेशर एंड द एरिया दस बिकम लो प्रेशर एरिया। तो उस एरिया में क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, एयर का प्रेशर जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। The space vacated by hot air is replaced by cool. अब उसमें क्या होता है, गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद जो है ऊपर की ओर जाती है, और ठंडी हवा जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाती है। Dense air of the surrounding high pressure area, जो जिधर हाई प्रेशर उधर से वो हवा आ जाती है। This flow or movement of air is called wind. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, विंड कहते हैं, जो वायु जो बहती है। Thus wind always flows from high pressure area to low pressure area. तो हवा हमेशा कैसे बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और क्यों बहती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया की हवा जो है गर्म होकर के ऊपर जाती है, ऊपर की हवा नीचे आती है, बस इसी को सिंपली समझो। ऊपर हाई प्रेशर, ऊपर जो है क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, और इसी तरह से नीचे कैसा रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो ऊपर की हवा नीचे, फिर नीचे की गर्म हवा ऊपर, फिर वो ठंडी होकर नीचे, फिर ये हवा गर्म होकर ऊपर, यही मैकेनिज्म एयर चलता रहता है। The phenomena of monsoon is a good example of such seasonal wind. This change is caused due to the unequal heating of land and water. और ये क्यों होता है, ये चेंज कैसे होता है, लैंड और वाटर का इक्वल नहीं अनइक्वल हीटिंग होता है। Our country receive monsoon rains, so which support our agricultural economy. Thus, our country is very much dependent on the monsoonal. और ये जो होता है गर्म हवा नीचे की गर्म हवा ऊपर, ऊपर का गर्म हवा ऊपर की ठंडी हवा नीचे, इससे क्या होता है, मानसून बनता है। और उससे क्या होता है, बारिश जो होती है वो हमारे यहाँ खेती, हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड, आवर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल बेस्ड, और जिससे कि अगर अच्छी बारिश होती है तो खेती भी अच्छा होता है, बारिश अच्छी नहीं होती है तो खेती भी अच्छा नहीं होता है, ये कहने का मतलब है। डू यू नो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर and pressure are opposite to each other on the earth surface. Higher the temperature, lower is the air pressure. अब कहता है atmospheric temperature and pressure are opposite to each other on the earth surface. अब कैसे, atmospheric temperature और pressure अलग अलग कैसे, temperature मतलब जो गर्मी है, pressure मतलब हवा का दबाव। अब कहता है surface, higher the temperature, lower is the air pressure. अब temperature अगर ज्यादा होता है, higher मतलब गर्मी, तो air pressure क्या होता है, कम हो जाता है। तब क्या होता है, ऊपर की जो प्रेशर एयर जो ठंडी होती है जिसमें प्रेशर ज्यादा होता है वो नीचे आ जाता है, और हल्की हवा ऊपर चली जाती है, अपोजिट होता है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, एज द हॉट एयर राइजेस
देखिए, I have posted the PDF of this lesson and so mechanism of rainfall जो है पेज नंबर 28 में, उसको आप लोग अपने ज्योग्राफी कॉपी में होमवर्क में बनाएंगे। और रेन गॉज दिया हुआ है पेज नंबर 29 में, उसको भी बनाएंगे। 28 के ऊपर में एक विंड वैन दिया हुआ है, आप उसको भी बनाएंगे। मतलब यू हैव टू मेक 3 डायग्राम्स फ्रॉम पेज नंबर 28 एंड 29। 28 से 2, एक विंड वेन एंड दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, और 29 से एक रेन गॉज। और उसके बाद जो है एक पेज नंबर 27 देखिए, उसमें बैरोमीटर आप लोग बनाइएगा। पेज नंबर 27 में बैरोमीटर बनाएंगे और पेज नंबर 25 का कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बनेगा और पेज नंबर 24 से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बनेगा इन योर ज्योग्राफी कॉपी। मतलब पेज नंबर 24 से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बनाएंगे, पेज नंबर 25 से कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बनाएंगे, पेज नंबर 27 से बैरोमीटर बनाएंगे, पेज नंबर 28 से मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल और विंड वेन बनाएंगे, और पेज नंबर 29 से रेन गॉज बनाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल को अलग से नहीं बनाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आंसर भी है आपका इस बुक में आपके दिया हुआ, उसके साथ आपको देना है, जैसे देना है कि नेम व्हाट इज द, बता रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल का आपका दिया हुआ है, हाउ इज रेनफॉल कॉज, E4 है। जब उस क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा, जब हम देंगे, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ये डायग्राम उसी समय उस क्वेश्चन के पहले ऊपर लिख लीजिएगा, नीचे डायग्राम बना लीजिएगा, नीचे आंसर देना शुरू करिएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल वाला अब डायग्राम अभी छोड़ दीजिएगा, उसको नहीं बनाइएगा, और उसको जब क्वेश्चन आंसर लिखिएगा उस समय आप लोग बनाएंगे। नाउ mechanism of rainfall. As the hot air rises, it reaches high in the atmosphere where it cools down due to the presence of low temperature there. Thus, the water present in the form of water vapor condense into the 10 droplet of water or crystal of ice. In due course, अब पहले जैसे जो नीचे की जो गर्म हवा जो ऊपर जाती है, वो जो है कंडेंस होती है जो हाइड्रोक्लोरिक न्यूक्लियस के आसपास, और जब वो कंडेंस हो जाती है, ड्रॉपलेट बन जाता है, जो भारी हो जाता है, तो वो फिर नीचे आ जाता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ, तो मतलब कंडेंसर, प्रेसिपिटेशन, नहीं क्या कहिएगा, इवेपोरेशन, कंडेंशन एंड प्रेसिपिटेशन। पहले इवेपोरेट होती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, वहां जा करके वो जो है ड्रॉपलेट में बदलती है और नीचे की ओर आती है। तो इवेपोरेट होती है, उसके बाद कंडेंस होती है, तब प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब फिर से बारिश। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल। ये जो है हमेशा एक चलने वाला कोर्स है, इसीलिए इसका नाम है मैकेनिज्म। ड्यू टू फर्दर कूलिंग, दिस टाइनी कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स ज्वाइन एंड फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स। इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज ड्रॉपलेट्स बिकम सो हेवी दैट द एयर कैन नॉट होल्ड देम। जैसे धीरे धीरे ये जब जमा होते होते इतने भारी हो जाते हैं कि हवा इनको रोक रख, वही न्यूक्लियस ड्रॉपलेट वहां पे वो रुक नहीं पाता है। अब तब फिर क्या होता है, दे फॉल डाउन एज रेनफॉल और स्नोफॉल। तब क्या होता है, ये नीचे की ओर आ जाते हैं रेनफॉल और स्नोफॉल के रूप में, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द रीजन। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। तो डेट इज द, तो उधर आइस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ टेम्परेचर हाई है उधर क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। द रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस एज इट ब्रिंग्स वाटर टू द अर्थ विच इज essential for the survival of all kinds of life on earth. When the rainfall is scarce or very low, it causes drought. On the other hand, excessive rainfall causes flood. अब कहता है तो पानी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, अगर जो, लेकिन बट फिर भी कहता है कि अगर कम हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है, एग्रीकल्चर खेती नहीं हो पाती है, उसी को ड्रॉट कहते हैं। और जब ज्यादा हो जाता है एक्सेस, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो, या टीवी देखते होंगे तो देखते हैं कि बिहार में चारों तरफ बाढ़ आ रहा है, क्योंकि उधर नेपाल जो है, कोसी नदी, बागमती नदी जो उधर से हिमालय की रिवर से उधर से निकलती है, वो सबको पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और ऑलवेज उधर बाढ़ आता है। दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सारा एरिया। तो उसके बाद जो है फिर कहता है, और जिधर अगर मान लीजिए कि अच्छा बारिश नहीं होता है तो फिर सूखा पड़ जाता है, तो ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब खेती नहीं होता है, अनाज की कमी हो जाती है, लोग भूखों मरने लगते हैं। Do you know the rainfall can be measured with the help of an instrument called rain gauge. The unit of measuring rainfall is centimeter
और मिलीमीटर। द यूनिट ऑफ मेजरिंग रेनफॉल इज सेंटीमीटर। रेनफॉल को किसमें हम लोग सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करते हैं, नापते हैं। मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, अब कहता है देखिए अभी ये जो है जैसे टेम्परेचर, आप पेपर में भी देखिएगा तो लिखा रहता है कि कब वेदर कब कैसा रहेगा। और दूसरा टीवी पर भी सुनाता है, वेदर रिकॉर्ड दिखाता है। तो देयर आर टू टाइप्स, एक वेदर और एक क्लाइमेट होता है। तो वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब सुबह शाम, ये कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे अभी आप लोग मार्क करते होंगे, बता इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी अपन लोग मार्क करते हैं, जैसे कल यस्टरडे व्हाट हैपेंड इन द वेरी मॉर्निंग, एकदम अंधेरा हो गया, खूब पानी पड़ा, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब पानी पड़ गया 2-3 घंटा, उसके बाद नॉट ए डे आफ्टर यस्टरडे, एक दिन पहले, उसके डे बिफोर यस्टरडे, उसके मतलब एक दिन के पहले, कल के पहले, परसों की बात में करेंगे, मतलब डेट वाज 20 मंडे, ऑन मंडे व्हाट विल हैपन इन द मॉर्निंग, एकदम लगा कि अंधेरा हो गया है और खूब बारिश हुई, और उसके बाद फिर बारिश जब रुक गई तो फिर अंधेरा खत्म हो गया। तो दैट इज वेदर, जो डायनेमिकली चेंज होता है, तुरंत कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। लेकिन अब इसी से इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस एंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक प्लेस का भी मतलब समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए सपोज करिए कि आपके एरिया में खगौल में पानी पड़ रहा है और आप बाद में पता करिएगा कि बेली रोड में पानी नहीं पड़ा है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक एरिया, कि एक जगह पड़ता है एक जगह नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चेंज करता है, कभी कभी एरिया वाइज भी बदल जाता है, तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर में चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम सिटी और लोकेलिटी, उसी को आगे आपको बता भी रहा है, एक ही शहर में बदल हो सकता है, इधर पानी पड़ेगा उधर नहीं होगा, इधर आंधी आएगा उधर नहीं आएगा। तो दिस आर द मतलब वेदर एक ही जगह में दो तरह का होता है, बट सेम सिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। On the other hand, climate refers to the state of atmospheric condition that include temperature, rainfall, pressure over a long period of time and over a larger area. That is the climate of India is monsoonal. अब कहता है क्लाइमेट क्या करता है, वो जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह पर एक ही जैसा टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द क्लाइमेटिक कंडीशन, उसको क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं। जैसे इंडिया का क्लाइमेटिक क्या है, क्लाइमेट मानसूनल है। अभी हम लोग कभी कभी पूरे देश में एक साथ पानी पड़ना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग का मॉनसून का मौसम चल रहा है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द डेली टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। अब कहता है कि हम लोग को दोनों, जहां हम लोग रहते हैं, कम से कम वहां का एयर प्रेशर और टेम्परेचर, ये हम लोग को जानने का काम है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आज पानी पड़ेगा, मौसम कैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग बाहर निकले, इसलिए कहता है कि जानना चाहिए। Further, when we travel to any distant place, we should know these variables to prepare ourselves for a particular weather condition. अब कहता है कि जब हम लोग कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो उसी को ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ का मौसम कैसा है, और उसी के हिसाब से सामान वगैरह लेकर के हम लोग को चलना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं शिमला, मसूरी, नैनीताल कहीं घूमने गए, तो ठीक है अभी वहाँ गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसका क्लाइमेटिक उसका वेदर कैसा रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है, ठंड भी। क्यों? क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड पर बसा हुआ है, मतलब हाई अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे बसा हुआ है। तो ऊंचाई पे जनरली जो है वेदर कंडीशन वहाँ का जो कैसा रहेगा, चेंज अगर हो जाएगा, तो अभी गर्मी है तो ठंड भी पड़ने लगेगी, इसलिए हम लोग उसके हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे जहाँ की हमेशा बहुत मान लीजिए हेवी रेनफॉल होता है, तो हम लोग उसी तरह का सामान लेके जाएंगे कि हम लोग पानी में भीगे नहीं और अपना काम करेंगे। तो दिस आर द प्रिपरेशन है। तो वेदर कंडीशन कहीं जाए तो वहाँ जानना चाहिए, अपने शहर का भी वेदर कंडीशन जानना चाहिए। फॉर आवर बेनिफिट द वेदर रिपोर्ट्स आर गिवन डेली इन द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। अब कहता है हमारे लिए वेदर कंडीशन जो है डेली न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन में दिया रहता है। इट इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन to like forecast of temperature, humidity, rainfall, wind velocity, sunrise and sunset। ये सब तरह का जितना हम लोग चाहते हैं उतना इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ रहता है। अब उसमें क्या क्या रहता है, फोरकास्ट ऑफ टेम्परेचर, गर्मी रहेगी ठंडक रहेगी, टेम्परेचर कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी, एयर कैसा रहेगा, ड्राई एयर रहेगा कि उसमें ज्यादा वेट एयर रहेगा, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं, किस तरह का वहां पे मौसम है, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, सनराइज एंड सनसेट।
These are useful to all of us in different ways, and we should make it our habit to read the weather report on daily basis. अब कहता है कि हम लोगों को एक हैबिट बना लेना चाहिए और वेदर रिपोर्ट डेली पढ़ना चाहिए. Now children, I am going to read the keywords. Keywords number 1 is global warming. Meaning is, and you also learn the keywords. So please and write the keywords in your copy also. Are you writing or not the keyword? Write. आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? You are writing the keyword or not? लिखिएगा. Okay. Next is global warming. A gradual increase in the overall temperature on the Earth's surface. Global warming means a gradual increase in the overall temperature of the Earth's surface. Earth surface मतलब धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है पूरा वो बढ़ना. That is global warming. Humidity, amount of water vapor in the atmosphere. Water vapor अगर ज्यादा रहता है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है. जैसे अभी का जो एयर है इंडिया में, अभी हम लोग के आपके लोकेलिटी का भी जो भी आप समझिए, तो इसको समझने के लिए समझ लीजिए. ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा है, वाटर वेपर मतलब ज्यादा है, तो इसलिए कपड़ा वगैरह जो हम लोग का सूखता है वो उसमें बहुत समय लगता है. और गर्मी के दिन में क्या होता है, वाटर वेपर जो है कम रहता है, एयर कैसा रहता है, ड्राई एयर रहती है. तो हम लोग का देखेंगे कि कोई भी चीज जो है हम लोग करते हैं होता है. मानसून, seasonal reversal of the wind direction according to the change in the season. अब विंड के डायरेक्शन का बदल जाना, सीजन के बदलने के बाद विंड के डायरेक्शन का बदल जाना. एक बार हवा समुद्र के तरफ से चलती है और एक बार जो है कहाँ से चलती है, ग्राउंड के तरफ से चलती है, धरती के तरफ से चलती है. तो वही जब समुद्र के तरफ से चलने लगती है तो ये जो है कैसी हवा होती है, मतलब और एक बार धरती की तरफ से चलती है. दैट इज द वे अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन. जैसे जैसे सीजन में चेंजेस आता है. फोटोसिंथेसिस, ये वर्ड आया था नाइट्रोजन वाले में. द फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड टर्न दैट एनर्जी इनटू फूड. अब कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट में ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं इन्वायरमेंट से, और उसके बाद क्या होता है, और अपना खाना बनाते हैं, और उस गर्मी से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं. और ये फोटोसिंथेसिस है. तो कहता है कि जो लेकिन जो इन्वायरमेंट में जब पेड़ पौधा नहीं रहता है तब ये जो है ज्यादा ऑक्सीजन खींचने लगते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींचने लगते हैं, और मतलब उतना नहीं खींच पाते हैं, सॉरी, जितना से मतलब कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए. तो नेचुरल क्या होता है, अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. दैट इज नाउ समथिंग टू नो, and that is the exercise of the lesson, because already I have taught you the keywords of the lesson and lesson has been explained. So children, open page number 30 और PDF जो दिए हैं उसका जो लास्ट वाला 30 जो आएगा पेज नंबर, उसमें आ रहा होगा आपका लेसन का, आप लोग उसको खोलिए और टिक द करेक्ट ऑप्शन. ए देखिए, in normal lapse rate temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius with every 1065 मीटर एक्सेंट. ए होगा इसका आंसर. इसका आंसर ए होगा 1065 मीटर एक्सेंट. Which layer is safe for flying aircraft? That is stratosphere. ट्रोपोस्फेयर नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में ये एयरक्राफ्ट चलता है. That is the role of ion particles in the ionosphere is enable wireless communication because they are electrically charged. अपने आप से चार्ज हो जाते हैं. जो मतलब इन्वायरमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है उससे वो लोग चार्ज हो जाते हैं. दैट इज द कम्युनिकेशन उसमें होता है, कर पाते हैं. वहीं पर सैटेलाइट और वायरलेस कम्युनिकेशन काम करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन कॉज वार्मिंग? दैट इज ए एयर पॉल्यूशन, बी वाटर पॉल्यूशन, सी सॉइल पॉल्यूशन, डी लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का गिरावट. तो इसमें इसका आंसर होगा एयर पॉल्यूशन. आंसर इज एयर पॉल्यूशन. स्मॉग कॉजेज, स्मॉग से क्या होता है,
तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्किन का भी हम लोग आप पढ़े थे आप लोग, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रहा है. हेवी रेनफॉल, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, रिडक्शन इन टेम्परेचर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम. स्मोक कॉजेज SMOG, स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम. अगेन एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, एंड दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. द in the normal lapse rate, temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius with every. A have 165 meter accent, B have 175 meter accent, C have 185 meter accent, and D have 195 meter accent. The right answer is 165 meter accent. After that, which layer is safe for flying aircraft? That is stratosphere. B. One है troposphere, B है stratosphere, C है mesosphere, D है thermosphere. आंसर होगा हम लोगों का stratosphere. The role of ion particles in the ionosphere is to absorb ultraviolet rays, enable wireless communication, B burn meters, and D enable rainfall. इसका आंसर होगा B enable wireless communication. Which one of, ये है 4, नंबर 4, ये नंबर 3 का भी आप लोग को आंसर बताए B और C. इसका 4 देखिए, which one of the following is the main cause of global warming? And that is air pollution of the following is the main cause of global warming. उसके बाद कहता है smoke causes A breathing problem, B purification of air, C heavy rainfall, D reduction in temperature. That is breathing problem. क्योंकि बाकी ये सब कुछ जो है जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर स्मोक की वजह से उसका गड़बड़ हो जाएगा. पानी का इससे कोई मतलब रेनफॉल से स्मोक का कोई नहीं, स्मोक का नहीं है. और रिडक्शन इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को कम भी नहीं करता, बढ़ा देता है ज्यादा. फिल इन द ब्लैंक्स. एटमॉस्फेयर, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 का आंसर देखिए बी है ये. एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज ऑफ 3 मेजर गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Gases like argon, helium, methane, etc. are present in small amount in the air. Small amount in the air मतलब छोटे, ज्यादा नहीं है. All weather phenomena occur in the troposphere. Troposphere is the layer where we live, जहाँ हम लोग रहते हैं. और इसी पर सारा वेदर मतलब फिनोमेना मतलब वेदर का जितना भी चेंजेस होता है, जैसे विंटर, रेनी सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, और एक होता है समर सीजन, और बीच में एक और आता है हम लोग का स्प्रिंग सीजन आता है, फरवरी के आसपास आता है. और ऑटम भी आता है, तो मतलब पेड़ अपना पत्ता गिरा देता है, पतझड़. All weather troposphere, atmospheric condition over a long period of time and on a larger area is called climate. What is और weather को क्या कहेंगे? Atmospheric condition over a small period of time and in a small area is called weather. Is called weather. The normal air pressure at sea level is 1013 millibar. 1013 millibar. Now fill in the blanks. इसका आंसर एक बार और हम लोग मैच करेंगे. Atmosphere is mainly composed of 3 major gases, that is nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Number 2, gases like argon, helium, methane, etc. are present in a small amount in the air. All weather phenomena occur in the troposphere. All weather phenomena occur in the troposphere में सब तरह का weather phenomena होता है. Atmospheric condition over a long period of time and on a larger area is called climate. Is called climate. And last, number 5, the normal air pressure at sea level is 1013 millibar. The normal air pressure at sea level is 1013 millibar. उसके बाद match the following. Match the following को देखिए. मोनोऑक्साइड गैस ये क्या करता है? मोस्ट हार्मफुल गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. बी इसका आंसर बी होगा. इसका आंसर बी होगा. मोनोऑक्साइड गैस मोस्ट हार्मफुल गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज मोनोऑक्साइड गैस. नंबर 2, वेदर.
वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस कवरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको ई से मैच करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मैच करेंगे ई से करेंगे। 3 बैरोमीटर an instrument D to measure atmospheric pressure, barometer, an instrument to measure atmospheric pressure. Number 4, atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure, weight or pressure exerted by the air. एयर से जो वेट और प्रेशर निकलता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेट और प्रेशर exerted by the air. Rainfall, the falling of water drops on the earth's surface. Rainfall, the falling of water drops on the earth's surface. Now फिर से देख लीजिए एक बार। मोनोऑक्साइड, मोस्ट हार्मफुल गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये मतलब 1 का आंसर है बी। वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस कवरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, किसी जगह को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का जो कवर करता है उसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम लोग वेदर कहते हैं। उसके बाद बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं? व्हाट इज वेट और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है? वेट और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। rainfall, the falling of water drops on the earth's surface, that is rainfall. Okay children, ये आप लोग कल हम लोग डी और ई को कर लेंगे और फ्राइडे के दिन लेसन 3 को एक बार आप लोग को फिर से पढ़ा देंगे। सो एक बार फिर से ए को आप लोग देख लीजिए। सीधा इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन का 1 का ए होगा। नंबर 2 का which layer is safe for flying aircraft, that is stratosphere. The role of ion particles in the ionosphere is to enable wireless communication को enable करता है। Number 4, which one of the following is the main cause of global warming, that is air pollution. Number 5, smog causes breathing problem. B, fill in the blanks. Atmosphere is mainly composed of 3 major gases: nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. Gases like argon, helium, methane, etc. are present in a small amount in the air. Number 3, all weather phenomena occur in the troposphere. Number 4, atmospheric condition over a long period of time and on a large area is called climate. Number 5, the normal air pressure at sea level is 1013 millibar. And match the following. Already we have done it, but once I am going to revise it, and that is monoxide gas, the most harmful gas present in the atmosphere. Weather, atmospheric condition for a specific place covering a short period of time. Barometer, an instrument to measure atmospheric pressure. Atmospheric pressure, weight or pressure exerted by the air. Rainfall, the falling of water drops on the earth's surface. Now children, write this ABC in your